Hello everyone, welcome back to my channel. And in this video, we are going to talk about The Cancer Fight from Hiroshima to Houston by Ritsuko Komaki. This particular chapter is prescribed in the CHSC syllabus for the first year students. Right, let's move on. Now, before I start with the chapter, थोड़ा background देख लेते हैं. So during the Second World War, the world was divided into two parties, Allies and the Axis. ठीक, अब Axis में कौन थे? Germany and Japan. So in the year 1945, America dropped two atom bombs titled Little Boy on Hiroshima and Fat Man on Nagasaki. उसके बाद जापान सरेंडर. जापान में क्या है ना, उनका एक सैमुराई कल्ट है, ट्रेडिशन, सामुराई ट्रेडिशन. और सामुराई ट्रेडिशन में ये बिलीफ है दैट वी विल नेवर सरेंडर टू द एनिमी. जान जाए तो जाए, लेकिन सरेंडर कभी नहीं. ठीक है, तो जब एटॉम बॉम्ब गिरा ऑन द सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी और अमेरिका ने कहा दैट जापान सरेंडर, तो जापान तब भी सरेंडर करने को उसका बिल्कुल भी मन नहीं था. बट देन जब उसने देखा, जापान के जो अथॉरिटीज ने देखा कि वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन हुआ है, वाइल्ड लाइफ, एनवायरमेंट, ह्यूमन बींग्स, thousands and thousands of people instantly died because of टेम्परेचर का लेवल से नॉर्मल 25 डिग्री सेंटीग्रेड 23 डिग्री सेंटीग्रेड से एकदम से 700 डिग्री 800 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया था. इतना ज्यादा हीट रिलीज हुआ था, इतना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था कि लोग बैठे बैठे जल गए बिकॉज ऑफ दैट एटम बॉम्ब. तो ये सब देखने के बाद जापान गवर्नमेंट फाइनली सरेंडर. ओके, और एटम बॉम्ब से निकला क्या? एटम बॉम्ब से निकला गामा रेडिएशन. गामा रेडिएशन जो कि कॉजेस कैंसर. Okay, now Hiroshima in your title indicates the rise in the cancer cases due to radiation, which the author experienced in her family. तो author अपने फैमिली में देखे, अपने फ्रेंड सर्कल में देखे that एटम बॉम्ब बर्स्ट होने के बाद किस तरह उसका इफेक्ट्स रहा. And she was shocked. She was shocked. And Houston indicates the find of cure for cancer treatment. So Hiroshima to Houston is a kind of journey from cause to cure. Okay, journey from negativity to positivity. Right, now this chapter discusses proton beam therapy as a cancer cure after the usual methods like surgery, radiation, chemotherapy, photon therapy. So इस chapter में we are basically going to discuss about proton beam therapy. Okay, now in the first unit, Ritsuko Komaki as a child, वो ओसाका में थी जब हिरोशिमा के ऊपर पहला एटम बम गिरा. कुछ टाइम बाद when she returned to that city, she found her relatives dying. One day, her childhood friend also died because of leukemia. Leukemia कैसे हुआ? वो रेडिएशन के लिए. ठीक है, रेडिएशन की वजह से उनके जो कोमाकी के जो दोस्त थे उनको leukemia हुआ and she died at the age of 11. After that, Komaki promised that she will find out a cure for cancer, that she will somehow get herself into that oncology department. Oncology क्या होता है? Study of treatment of cancer related issues. Okay, study of treatment, study of that radiation that cures cancer. Okay, now soon उनका जो radiation था, that basic concept of radiation, या radiation is is it's like an invisible enemy. तुम्हें पता नहीं होगा और तुम्हारे चारों तरफ रेडिएशन होगा. हिरोशिमा नागासाकी में जब the population suffered
उनको पता नहीं था कि ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। दे वर अनेबल टू सी, मतलब कोई सोल्जर वोल्जर होता गन वन पकड़ के तो हाँ वो देख लेते, अटैक करते, लेकिन यहाँ पे तो कोई कुछ दिख ही नहीं रहा है। ये रेडिएशन जो है वो है कहाँ, कुछ दिख ही नहीं रहा है। सो रेडिएशन इज लाइक इनविजिबल एनिमी, एंड कोमाकी वाज इनिशियली अफ्रेड ऑफ रेडिएशन, but soon that fear turned into fascination. So her area of study at MD Anderson Cancer Center in Houston. What became her area of study? Radiation became her area of study. She started to research on radiation. She started to research on cancer cure. According to her, under trial patients were well suited in university. अब बात ये उठता है कि वो जो पढ़ रहे थे about cancer, why was she not conducting her experiments or her research work in any kind of clinic or hospitals? Why was she doing it in the university? Okay, तो वो बोल रही थी that private clinics जो है lacked efficient manpower, review boards and deficient in quality control measures. Okay, radiation को handle करना, radiation के बारे में पढ़ना, it's not an easy task. You have to be very intelligent. One, you have to be very careful as well, and you have to have a lot of equipments to study that radiation. Komaki also received the Juan A. Del Regato Foundation Gold Medal for her work. And she says that all the time I try to educate the young people about leading a healthy lifestyle. Okay, now in your unit 2, what is discussed at length? क्या discussion हुआ है? Why proton beams are better than X-rays for treatment of cancer? So before her research on proton beam, कैंसर क्योर के फील्ड में क्या चल रहा था? केमोथेरेपी चल रहा था, सर्जरी चल रहा था, एक्सरेज, यूज ऑफ एक्सरेज भी चल रहा था, ठीक है। सो व्हेन शी केम इनटू दैट फील्ड, उसने कहा दैट प्रोटॉन बीम थेरेपी एक नया काइंड ऑफ थेरेपी है दैट विल आल्सो हेल्प टू क्योर कैंसर। नाउ proton beams are localized, powerful and target specific, hence sophisticated in nature. Collateral damage is also minimal. तो प्रोटॉन बीम क्या होता है? अगेन रेडिएशन के इस्तेमाल होता है। ओके, रेडिएशन इस्तेमाल करके पर्टिकुलर अफेक्टेड एरिया, जिस एरिया में कैंसर होता है, जिस सेल्स को कैंसर अफेक्ट करता है, उसी एरिया को ही प्रोटॉन बीम्स जो है दैट विल सराउंड दैट एरिया लाइक एन आर्मी, और वो उसी एरिया पे एक्ट करें। ओके, दे विल परफॉर्म देयर एक्शन ओनली ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया, टारगेट स्पेसिफिक, इधर उधर बॉडी में कहीं नहीं जाएंगे। अगर रिसर्चर को चाहिए या डॉक्टर को चाहिए कि ये जो व्यक्ति है इनके पैर में कुछ हुआ है, सो आई एम गोइंग टू ट्रीट दैट पर्टिकुलर पोर्शन इन हिज लेग, तो वो प्रोटॉन बीम को उस पर्टिकुलर लेग पोर्शन में ही इज गोइंग टू मेक इट इंसिडेंट। ओके, मतलब वहीं पे ही वो टारगेट होगा और उसी एरिया में दैट प्रोटॉन बीम इज गोइंग टू एक्ट, इधर उधर कहीं नहीं जाएगा। राइट, कोलैटरल डैमेज क्या होता है कि जब हम रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग योर रेडिएशन थेरेपी, तो आसपास के हेल्दी सेल्स, कैंसरस सेल तो होते हैं, उसके आसपास के हेल्दी सेल्स आल्सो गेट्स अफेक्टेड समटाइम, उसको कहते हैं कोलैटरल डैमेज। प्रोटॉन बीम के इस्तेमाल से वो कोलैटरल डैमेज दैट गेट्स रिड्यूस्ड, ठीक है। फिर एक्सरेज और फोटोन्स आर यूज्ड इन बिग डोज बट किल द सराउंडिंग हेल्दी सेल्स। तो अब हमने देख लिया सेकंड पॉइंट में दैट प्रोटॉन बीम्स कैसे इस्तेमाल होते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट टू प्रोटॉन बीम्स, एक्सरेज जो इस्तेमाल होते हैं वो टारगेट स्पेसिफिक नहीं होते हैं। ओके, टारगेट स्पेसिफिक नहीं होते हैं और काफी बड़े डोज में दैट एंटर्स इनटू द ह्यूमन बॉडी। एज सच कैंसरस सेल्स तो अफेक्ट करता ही है, साइड के सराउंडिंग हेल्दी सेल्स को भी कहीं ना कहीं वो अफेक्ट करता है। ओके, एंड कोलैटरल डैमेज हो रहा है ऑफ कोर्स। अब एक चीज को करने जाओ वो दूसरा चीज भी हो सकता है, उसके साथ साथ दोनों चीज हो रहा है, तो वो सेकेंडरी चीज जो हो रहा है, सेकेंडरी डैमेज जो हो रहा है, हम उसको कोलैटरल डैमेज कहते हैं। तो एक्सरेज जो कोलैटरल डैमेज करते हैं
क्या होता है वो? न्यूमोनाइटिस मतलब लंग्स का कुछ प्रॉब्लम निकलता है। एसोफेजाइटिस यानी कि योर फूड पाइप, ठीक है, जो पाइप से आपका फूड आपके माउथ से स्टमक तक जाता है, फूड पाइप ऑल्सो गेट्स अफेक्टेड। बोन मैरो टॉक्सिसिटी, योर बोन, आपके जो हड्डियां हैं शरीर में, बोन के अंदर जो सब्सटेंस है ना, वी कॉल इट बोन मैरो, तो बोन मैरो भी अफेक्ट होता है। ओके, नाउ energy of the protons released can be controlled to reach its maximum efficiency and barely exits the body. X-rays release 90% of the energy the moment they enter the body and gradually lose strength and energy as they reach the tumor or target area, and while exiting the body they damage the secondary tissues as well. Here we come across another point of difference between proton beams and X-rays. तो प्रोटॉन बीम्स क्या होते हैं? उनको बाहर से रिसर्चर कंट्रोल कर सकता है, मशीन के द्वारा रिसर्चर कैन कंट्रोल कितना प्रोटॉन बीम ह्यूमन बॉडी के अंदर जाएगा। ओके, एंड जब वो टारगेट सेल के ऊपर एक्ट करता है, उसका एनर्जी एफिशिएंसी दैट आल्सो कैन बी इंक्रीज्ड बाय द रिसर्चर, एंड द एंटायर प्रोटॉन बीम इज यूज्ड टू ट्रीट द कैंसरस सेल। तो जब वो एक जगह से जाके दूसरे जगह से निकलता है, कुछ भी नहीं निकलता व्हेन इट कम्स टू प्रोटॉन्स, पूरा एंटायर प्रोटॉन बीम का एनर्जी गेट्स अब्सॉर्ब्ड बाय द अफेक्टेड एरिया, तो हीलिंग ज्यादा बेहतर होता है, काम ज्यादा अच्छा करता है। बट व्हेन इट कम्स टू एक्सरेज, द मोमेंट एक्सरेज एंटर योर बॉडी, तब से लेके अफेक्टेड एरिया तक पहुंचने तक, दैट जर्नी में एक्सरेज लूज मोस्ट ऑफ देयर एनर्जी। तो कैंसर क्योर में एक्सरेज का इस्तेमाल इनइफेक्टिव होता है इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन बीम्स। ठीक है, ओके। नाउ इन दिस पिक्चर इफ यू सी, पहला जो इमेज है आपका, देखो एक्सरे थेरेपी और प्रोटॉन थेरेपी लिखा हुआ है। सी, रेड कलर लाइट जा रहा है, आई थिंक दिस द ह्यूमन ब्रेन, द टॉप सेक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। रेड कलर लाइट अंदर जा रहा है, वो ब्लैक पोर्शन के ऊपर अफेक्ट कर रहा है और बहुत ज्यादा एनर्जी निकल भी रहा है। कहाँ? इन एक्सरे थेरेपी। लेकिन अगर प्रोटॉन थेरेपी को देखो, बहुत ज्यादा प्रोटॉन बीम एनर्जी अंदर जा रहा है, इट्स अफेक्टिंग दैट टारगेट एरिया, वो जो ब्लैक एरिया है, इट्स एक्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया, लेकिन एग्जिट कुछ नहीं हो रहा है। दैट मीन्स प्रोटॉन बीम्स का एंटायर एनर्जी is getting absorbed by that particular target, by that particular affected area. Okay, abhi move on to the second picture where a person is lying down. that machine, that entire machine और वो procedure होता है proton beam treatment. Okay, और ये नीचे वाला है your MD Anderson Cancer Center. ठीक है, now unit 2 again in continuation. Komecki says that the proton therapy is recommended in early stages of cancer and is known to be effective against many known forms of cancer. So Komecki is saying, Dr. Komecki is saying that proton beam therapy is effective, highly effective in the first stage of cancer. Okay, and it's highly effective against many known forms of cancer. अब वो बोल रही है कि अगर हम केमोथेरेपी के साथ प्रोटॉन थेरेपी इस्तेमाल करते हैं, then that is going to be very effective in treating lung cancer. Okay, and again she is saying कि ये जो प्रोटॉन थेरेपी है, it works best for children and elderly people. ठीक है, जो बच्चे हैं और जो बूढ़े हैं उनके लिए ये प्रोटॉन थेरेपी ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट काम करता है। क्यों? क्योंकि चिल्ड्रन में वो कोलैटरल डैमेज नहीं करता और एल्डरली में प्रोटॉन बीम थेरेपी शोज मिनिमम साइड इफेक्ट्स। ठीक है, समझ में आया? यूनिट 2। यूनिट 3, तो Komecki got inspired to study more about cancer
जब उनकी दोस्त गुजर गई एट द एज ऑफ 11. लेटर ऑन शी अंडरस्टूड ये जो रेडिएशन है, अगर ये इंसान को मार सकता है तो ये इंसान को बचा भी सकता है. यस, शी प्रेफर्ड the localized radiation, which is the proton beam, scattered radiation, which is the atom bomb, released by the atom bomb during the bombing. तो एटम बॉम्ब का जो रेडिएशन निकला नागासाकी और हिरोशिमा में, वो फैल के निकला. ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर विलेज, नो, फैल के निकला. मतलब दूर दूर तक पीपल वर गेटिंग अफेक्टेड. ओके, एंड कोमाकी इज सेइंग कि अगर मुझे रेडिएशन के बीच चूज करना हो तो मैं प्रोटॉन बीम का रेडिएशन चूज करूं and not the radiation released by the atom bomb. Okay, now protons were discovered in 1919, but in 1961 Harvard cyclotron lab with Massachusetts General Hospital began to treat patients using proton therapy. Okay, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अब प्रोटॉन थेरेपी का जो ट्रीटमेंट है वो काफी एक्सपेंसिव था उस वक्त, तो ऑल वर नॉट एबल टू अफोर्ड. Soon, Proton Treatment Center opened at Loma Linda University to provide first hospital-based treatment. तो प्रोटॉन थेरेपी जो था वो रिसर्च लैब से हॉस्पिटल आया because of Loma Linda University, because of the efforts of Loma Linda University. Then in 2006, $125 million Proton Therapy Center opened due to the efforts of Komaki and her husband. In the previous slide आपने देखा होगा वो यूटी एंडरसन सेंटर, राइट, वहां पे भी ट्रीटमेंट होता है, कैंसर ट्रीटमेंट यूजिंग प्रोटॉन थेरेपी. और उस चीज को इनिशिएटिव किसने लिया? डॉक्टर कोमकी एंड हर हस्बैंड, दोनों रिसर्चर्स थे. ओके, नाउ दिस इज दैट प्रोटॉन रिसर्च सेंटर, प्रोटॉन थेरेपी सेंटर, ये वाला है. क्वाइट एडवांस्ड, वेरी एडवांस्ड इन फैक्ट. The Proton Therapy Center has scanning beam technology to prevent neutron contamination. तो क्या होता है कि जब प्रोटॉन बीम रिलीज होता है and it enters your body, कभी कभार they release another subatomic particle called neutrons. न्यूट्रॉन्स रिलीज होता है, और वो न्यूट्रॉन्स अगर आपके बॉडी में रह जाए तो समटाइम्स इन द लॉन्ग टर्म, मतलब बहुत सालों के बाद, समटाइम्स वो न्यूट्रॉन्स भी कैंसर कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे जो हमारा प्रोटॉन थेरेपी सेंटर है उनका एक स्कैनिंग बीम टेक्नोलॉजी है. स्कैनिंग बीम टेक्नोलॉजी मतलब आफ्टर योर कैंसर ट्रीटमेंट, आफ्टर योर प्रोटॉन बीम ट्रीटमेंट, एंटायर बॉडी को स्कैन किया जाता है ये देखने के लिए कि आपके बॉडी में न्यूट्रॉन्स है या नहीं. अगर है तो उनको रिमूव किया जाता है, और अगर नहीं देन यू आर वेल एंड गुड. ओके, so now we have come to the end of this chapter. ये chapter बहुत से first year students को difficult लगा, so I decided to kind of simplify it using pictures as well for better understanding. Do let me know if you like this video or not, and thank you so much.